Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the parents and teachers. How are you all? I hope all of you are fine. And today we are going to start Unit 5 of Class 4 New Oxford Modern English. The title of this story is The Ambassador's Disguise. The Ambassador's Disguise यानी कि सफ़ीर का जो उसने भेस बदला था, ठीक है। ये उसके बारे में है कि एक सफ़ीर था और उसने किस तरह अपना भेस बदला और उसने फिर क्या किया, ये सारा हम इस स्टोरी में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ऑलवेज, आई एम गोइंग टू टेल यू द थीम ऑफ दिस स्टोरी. द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ adventure and imagination. It is not a true story and it is a folk tale and it is based on the theme of adventure. The SLOs means student learning outcomes of this story, of this lesson, are, as always I have told you, that first of all we have to improve the reading of the children with correct pronunciation and correct expression. Okay, reading with correct pronunciation and expression is the most important thing, and it is the most important SLO when we are learning English as a second language. This is the most important thing, because when they will read any text with correct pronunciation, with correct spellings and with correct understanding and expression, only then they will be able to, the students will be able to comprehend it and they will be able to answer the questions related to that topic. ओके अगर वो उसको समझ के नहीं पढ़ेंगे, अगर रीडिंग को एक्सप्रेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे, तो उनका खाली यानी कि रीडिंग करना जो है वो बिल्कुल भी सूदमंद नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है. So once they have read the chapter, once they have comprehended, then they will do the comprehension. Comprehension means the question answers or any exercise related to the that lesson which students have read. Okay, then in the working with words part, here we are going to do clause matching. Clauses, we will match the clauses in the exercise of this chapter. After that there is grammar part, and in grammar we are going to learn about verbs and predicates. Okay, then there will be listening and speaking part. In that the students will have to hear a passage, they have to listen a passage, and then they have to answer the questions related to that passage. And in the end, as always, there will be composition or any kind of creative writing that children will have to do by themselves. We will just give them the word bank, or we will help them in mapping of that topic, of that theme, and they have to write about that topic. Okay, so these were the SLOs, and I tell these SLOs especially for the teachers who are teaching or who are going to resume their teaching in the schools now, inshallah, and they don't know that how much important these SLOs are. These lessons, these lectures are basically for the parents and the teachers who teach their students, and they must know the SLOs. They must know that whatever they are teaching, it has some outcomes, and they have to प्रोड्यूस दोज आउटकम्स इन देयर स्टूडेंट्स. यानी कि अगर आप बच्चों को रीडिंग करवा रहे हैं, उनको कुछ भी करवा रहे हैं, तो उसको बाद में आपने असेस भी करना है. आपका मेन मकसद आपके जहन में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में होना चाहिए, और उसको जो है रख के जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर ही आप अपने बच्चों को वो चीज़ सिखा सकेंगे और आपके स्टूडेंट्स भी आपको उस चीज़ का आउटपुट दे सकेंगे. उसके बगैर जो है बस यूनिट पे यूनिट कवर करते जाना, जैसे जी ये हमने एक हफ्ते में ये करवा दिया, दूसरे हफ्ते में दूसरा, और इस तरह सिलेबस कवर करवाना, उसका बिल्कुल कोई मकसद नहीं है, उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, ना आप लोगों को और ना ही हमारी न्यू जनरेशन यानी हमारे स्टूडेंट्स को. ओके, उनको समझाएं हर चीज़, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें. जब तक वो आपको आपके रिक्वायर्ड SLOs ना दें, आप लोग आगे मूव मत किया करें. ठीक है, ये मैं सब टीचर्स को जो सा ये ट्रेन कर रही हूँ, सब टीचर्स की ये ट्रेनिंग लेक्चर्स हैं आप लोगों ने, क्योंकि टीचर्स ने ही ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये स्कूलों में पढ़ाने होते हैं. ठीक है, और टीचर हमारा मजबूत होगा, टीचर को सब चीज़ें आती होंगी, तब ही वो आगे स्कूल्स में जो है वो अच्छी पढ़ाई दे सकेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द lesson. And first of all, you have to tell the words to know, which are also known as words meanings, and you have to do these words meanings in the notebooks. You have to ask the students to do these words meanings in their notebooks, and these are the dictation words also. You will ask the students to learn the spellings of these words also, and then you have to ask them to write the English to Urdu meanings also. I am going to tell you the English to English meanings as well as the English to Urdu meanings also. Okay,
एम्बेसडर, द फर्स्ट वर्ड इज एम्बेसडर. एम्बेसडर मीन्स एन ऑफिशियल ऑफ द हाईएस्ट रैंक सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री एज अ रिप्रेजेंटेटिव. ओके, यानी जिसको हम आम लफ्ज़ों में अपनी उर्दू ज़ुबान में सफ़ीर कहते हैं. ठीक है, आपको पता है कि जैसे आजकल भी मुख्तलिफ़ मुल्कों में जैसे पाकिस्तान के जो हैं सफ़ीर वो सारी दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में होते हैं. ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान में बाकी पूरी दुनिया के जो सफ़ीर हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं. और सफ़ीर का क्या काम होता है कि वो एक मुल्क का दूसरे मुल्क से जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है. ओके, दे एक्ट लाइक मैसेंजर्स. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ बूस्ट. द स्पेलिंग्स ऑफ दिस word are BOAST and the pronunciation is boost. Okay, it means to praise or speak highly about yourself. Means शेखी मारना या शेखी भगाड़ना, या जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं जी शोखियाँ मारना. ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये इसका मीनिंग है कि यानी कि अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बताना. द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लब. क्लब मीन्स अ हैवी स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड एज अ वेपन. ओके, मीन्स ये जो आप समझ लें कि असा होता है या लाठी जिसको हम कहते हैं. ठीक है, लांस. द नेक्स्ट वर्ड इज लांस, अ लॉन्ग वुडन वेपन विद अ पॉइंटेड स्टील हेड यूज्ड बाय हॉर्समैन. ये जो नीज़ा होता है, ठीक है, ये जितने भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स आजकल वो अर्तगल ड्रामा देख रहे होंगे, ठीक है, उनमें ये चीज़ें आप लोग आसानी से जो है वो देख सकते हैं कि ये नेज़े और तीर और ये सब चीज़ें उसमें हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिब्यूट, अ पेमेंट मेड बाय वन रूलर टू अनदर. यानी कि ये जो खराज तहसीन पेश करना जो होता है इसको हम ट्रिब्यूट कहते हैं. सो दीज वर द वर्ड्स टू नो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग एंड ट्रांसलेशन एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन बिकॉज दिस इज़ द मेन पार्ट. आपकी रीडिंग और ट्रांसलेशन आपकी कॉम्प्रीहेंशन अच्छी होगी, देन यू विल बी एबल टू डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस ऑफ एनी लेसन. वंस, एक दफ़ा का जिक्र है, इन द पैलेस ऑफ व्लादिमीर, व्लादिमीर के महल में, अ ग्रेट रशियन प्रिंस ऑफ कीव. व्लादिमीर कौन था? ही वॉज अ ग्रेट रशियन प्रिंस ऑफ द सिटी कीव. ओके, वो रूस के एक शहर कीव का बहुत बड़ा क्या था? प्रिंस था, शहजादा था. ऑल द नोबल्स वर मेकिंग बूस, यानी उसके महल में एक दफ़ा जो सारे यानी कि मुअज़्ज़िज़ीन थे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोबल्स? मुअज़्ज़िज़ीन. ओके, यानी कि जो भी उसकी हुकूमत के और जो उसके यानी कि मुअज़्ज़िज़ लोग थे वो सब वहाँ पे मौजूद थे. एंड दे वर मेकिंग बूस्ट, यानी वो अपनी शेखियाँ भगा रहे थे और हर कोई अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर यानी कि बता रहा था कि जी मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है. वन नोबल बूस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एक मुअज़्ज़िज़ीन ने यानी कि एक जो मुअज़्ज़िज़ आदमी था उसने अपनी ताकत के बारे में शेखी भगारी. अनदर शोड हिज विजडम, दूसरे ने अपनी जो जहानत है उसके बारे में शेखी भगारी. अदर्स बूस्टेड ऑफ देयर वेल्थ और देयर ट्रस्टेड हॉर्सेस, दूसरों ने अपनी दौलत या फिर अपने यानी ट्रस्टेड यानी कि जिन पर उनको भरोसा था, अपने भरोसेमंद घोड़ों की शेखियाँ भगारी. वन नोबल, एक मुअज़्ज़िज़ इंसान, स्टावर गोडिनोविच. स्टावर गोडिनोविच, आपको पता है कि रशियन लोगों के नाम जो हैं वो इसी तरह के होते हैं. व्लादिमीर, जो आजकल इनके रशिया का जो हमारा रशिया का जो रूलर है आजकल भी, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है वहाँ का, वो उसका नाम भी व्लादिमीर प्यूटिन है. ठीक है, सो इनके जो रशियंस के नेम्स हैं वो इसी तरह के ही होते हैं. स्टावर गोडिनोविच, यानी कि एक जो मुअज़्ज़िज़ आदमी था उसका नाम ये था, स्टावर गोडिनोविच. सेड नथिंग एट ऑल, वो कुछ नहीं बोला. ही सैट विद अ ड्रीमी लुक ऑन हिज फेस, वो अपने चेहरे पर एक ख्वाबनाक अंदाज से वो बैठा हुआ था, यानी कि उसके चेहरे पे एक ख्वाबनाकी थी, यानी कि वो किसी सोच में गुम था. प्रिंस व्लादिमीर नोटिस दिस एंड आस्क्ड, जो शहजादा व्लादिमीर था उसने ये बात नोट की, उसने ये बात महसूस की. नोटिस का क्या मतलब है? महसूस की. एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाई आर यू साइलेंट स्टावर? स्टावर, तुम क्यों चुप हो? हैव यू नथिंग टू से, क्या तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है या कहने को कुछ नहीं है? ग्रेट प्रिंस, अजीम शहजादे, रिप्लाइड स्टावर, स्टावर ने जवाब दिया, आई हैव नथिंग टू बूस्ट ऑफ एक्सेप्ट माई वाइफ, मेरे पास शेखी भगाड़ने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी बीवी के, कतरीना, जिसका नाम कतरीना है. ओके, शी इज़ यंग एंड ब्यूटिफुल, वो जवान और खूबसूरत है. ब्रेवर एंड मोर स्किलफुल देन एनी वॉरियर हेयर, और वो यहाँ पर मौजूद किसी भी जंगजू से ज़्यादा बहादुर और माहिर है. स्किलफुल यानी उसके पास बहुत सारी महारतें हैं. ठीक है. शी कैन शूट विद अ बो, वो एक तीर कमान के साथ शूट कर सकती है, यानी कि तीर चला सकती है. सिंग लाइक अ नाइटिंगेल,
एक बुलबुल की तरह गा सकती है, एंड इंचैंट एवरी वन विद हर हार्प, और अपने साज के साथ वो किसी को भी मदहोश कर सकती है। ठीक है, इंचैंट का क्या मतलब है? मदहोश यानी सहर तारी करना किसी पर। हार्प किसे कहते हैं? ये जो साज होता है ना, पुराने ज़मानों में ये जो साज बजाते थे, ठीक है, उसको हार्प कहते थे। एंड नो वन हेयर विल एवर बीट हर एट चेस, और शतरंज में तो कोई भी कभी उसको हरा नहीं सकेगा। यानी कि वो वो जो गोर्डिनोविच था, उसने कहा कि मेरे पास शेखी बगाड़ने को कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी बीवी कतरीना के। वो बहुत खूबसूरत है, जवान है, और वो यहाँ पे मौजूद जितने भी जंगजू हैं उन सबसे ज़्यादा माहिर है और उन सबसे ज़्यादा बहादुर है, और वो गाना भी बहुत अच्छा गाती है, वो तीर कमान से तीर भी बहुत अच्छे चलाती है, और वो जो है वो अपना अपना साज बजाकर हर किसी को मशहूर भी कर सकती है, और शतरंज में तो उसको कोई हरा ही नहीं सकता। यानी कि उसने इतनी सारी उसकी क्वालिटीज़ बता दी। ठीक है, इज़ दैट सो? क्या वाकई ऐसा है? इंटरप्टेड द प्रिंस, बादशाह ने दखल अंदाजी की। येस इंडीड, जी हाँ बिलाशुबा, ग्रेट प्रिंस, अजीम शहजादे, रिप्लाइड स्टावर, स्टावर ने जवाब दिया। शी कुड ईजिली डिफीट ऑल योर नोबल्स, वो आराम से आपके तमाम मौजूदीन को हरा सकती है, शिकस्त दे सकती है। डिफीट का क्या मतलब? हराना या शिकस्त देना। एंड और पार्डन मी, माफ़ कीजिएगा। पार्डन मी का मतलब होता है ये जब जो बादशाह और जो रूलर्स होते हैं उनके सामने ये बात करने का एक तरीका होता है, यानी कि उनसे आप पहले ही माजरत कर लेते हैं कुछ भी बोलने से पहले, जिसमें आपको ये लगे कि अगले को जो है वो ये बात बुरी लग सकती है, तो वो पहले ही कहते हैं पार्डन मी, यानी कि मुझे माफ़ कीजिएगा, फॉर सेइंग सो, जो मैं कहने लगा हूँ, ग्रेट प्रिंस, अजीम शहजादे, बट यू आर नो मैच फॉर हर आइदर, कि आपका भी उसके सामने कोई मुकाबला नहीं है, यानी कि आप भी उसके मुकाबले में बिल्कुल ज़ीरो हैं, उसका ये कहने का मतलब था। यानी कि उसने इतनी शेखी बगाड़ दी कि उसने शहजादे को भी जो उनसे वो नीचा दिखा दिया। द प्रिंस बिकेम वेरी एंग्री, बादशाह जो शहजादा था वो बहुत गुस्सा हो गया, वो बहुत नाराज़ हो गया, उसे बहुत गुस्सा आ गया। व्हेन ही हर्ड दिस, जब उसने ये सुना। ही ग्लेयर्ड एट स्टावर, ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से से घूरना किसी को। ठीक है, ही ग्लेयर्ड एट स्टावर एंड सेड, उसने गुस्से से स्टावर की तरफ घूरा, स्टावर को घूरा, एंड सेड, और कहा, यू हैव गॉन टू फार दिस टाइम, तुम इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए हो, यानी कि तुम ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर गए हो अपनी। हाउ डेयर यू से दैट आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि मैं तुम्हारी बीवी का मुकाबला नहीं कर सकता। द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट स्टावर, शहजादे ने स्टावर की तरफ अपनी उंगली का इशारा किया, एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड्स, और अपने एक मुहाफिज की तरफ मुड़ते हुए कहा, सेड, और अपने एक मुहाफिज की तरफ यानी अपने एक गार्ड की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, टेक दिस मैन अवे, इस आदमी को दूर ले जाओ, थ्रो हिम इनटू द डंजन, इसको काल कोठरी में बंद कर दो, फेंक दो, गिव हिम ओट्स एंड वाटर, इसको दलिया और पानी दो, ओट्स का मतलब होता है दलिया, ओके, नथिंग मोर, इसके अलावा कुछ नहीं, नाउ गो, अब चले जाओ। हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट दिस is the prince and she is the princess and here is the ambassador. Okay, the guard did as he was instructed, मुहाफिज ने वही किया जिसका उसे हुक्म दिया गया था या जो उसे हिदायत दी गई थी। he threw Stour into a cold dark dungeon, उसने स्टावर को एक ठंडे और अंधेरे सर्द और अंधेरी काल कोठरी में फेंक दिया। the only light came from a small window with thick iron bars, द ओनली लाइट केम, सिर्फ एक रोशनी वहाँ से आ रही थी, फ्रॉम अ स्मॉल विंडो, एक छोटी सी खिड़की में से, विथ थिक आयरन बार्स, जिस पर मोटी लोहे की सलाखें लगी हुई थी, हाई अप नियर द सीलिंग, जो कि ऊंचाई पर छत के पास थी। यानी कि वहाँ पे काल कोठरी में सिर्फ एक छत के पास एक छोटी सी खिड़की थी जिसके ऊपर मोटी मोटी लोहे की सलाखें लगी हुई थी, उनमें से थोड़ी सी लाइट अंदर आ रही थी। ऑल स्टावर कुड सी वॉज द स्काई, स्टावर सिर्फ वहाँ से आसमान देख सकता था। ही सैट ऑन द कोल्ड स्टोन फ्लोर, वो बैठ गया ठंडे यानी सर्द पत्थर के फर्श पर, फीलिंग वेरी सैड, बहुत उदास महसूस करते हुए। एज नाइट फेल, जैसे ही रात हुई, स्टावर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट द स्टार्स इन द स्काई, स्टावर ने खिड़की से बाहर देखा तारों की तरफ जो कि आसमान में थे। अलास, ही थॉट टू हिमसेल्फ, अफसोस, उसने अपने आप से सोचा, आई हैव सर्व द प्रिंस फॉर 9 years, मैंने 9 सालों तक शहजादे की खिदमत की है, एंड दिस इज़ हाउ
ही रीपेज मी, और ये उसका सिला उसने मुझे इस तरह दिया है। रीपे का मतलब क्या होता है कि किसी को उसके किए का सिला देना। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। आई हर्ट द प्रिंस, मैंने शहज़ादे का दिल दुखाया है। ठीक है, हर्ट का मतलब कि उसको मैंने उसका दिल दुखाया है। बट आई ओनली स्पोक द ट्रूथ अबाउट माई वाइफ, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी बीवी के बारे में सच ही बोला है। आई होप समवन टेल्स कतरीना वेयर आई एम, मेरी ख्वाहिश है या मैं उम्मीद करता हूँ या मेरी दुआ है कि कोई कतरीना को बताए मेरे बारे में कि मैं कहाँ पर हूँ। यानी कि अब वो कालकोठरी में बैठकर he was sad and he was thinking by himself that he should not have hurt the prince, but then he told to himself that he has only told the truth about his wife, और वो ये दुआ कर रहा था कि कोई जाके मेरी बीवी को बता दे कि मैं कहाँ पर हूँ। कतरीना हर्ड व्हाट हैड हैपन टू हर हस्बैंड, कतरीना ने सुन लिया था जो उसके शोहर के साथ हुआ था, यानी कि उसको पता चल गया था कि उसके शोहर के साथ क्या हुआ। शी ट्राई टू विजिट हिम द फॉलोइंग डे, उसने उसको उसी दिन जाकर मिलने की कोशिश की। फॉलोइंग डे यानी कि जो अगला आने वाला दिन होता है ना, वो यानी कि जिस रात उसे फेंका गया उससे अगले दिन ही उसने उससे मिलने की कोशिश की। बट द गार्ड्स वुड नॉट लेट हर इन, लेकिन मुहाफ़िज़ों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। सो शी थॉट ऑफ अ प्लान टू रेस्क्यू हिम, लिहाजा उसने उसको बचाने का यानी कि उसको आज़ाद करवाने का, रेस्क्यू यानी कि किसी को किसी की कैद से आज़ाद करवाना, किसी मुसीबत से उसकी जान छुड़ाना, उसको वहाँ से कैद से आज़ाद करवाने का एक प्लान यानी कि एक तरीका सोचा। कतरीना कॉल्ड टुगेदर हर बैंड ऑफ 30 आर्चर्स, कतरीना ने अपने 30 जो तीर कमान थे उनके गिरोह को बुलाया। ठीक है, 30 चेस मास्टर्स, 30 शतरंज के माहिरीन को, एंड 30 म्यूजिशंस, और 30 जो उसके मौसीकार थे उनको। ठीक है, शी हैड टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया था, शी नीडेड देयर हेल्प टू रेस्क्यू हर हस्बैंड, कि उसको उनकी मदद की ज़रूरत है अपने शोहर को आज़ाद करवाने के लिए। एंड दे एग्रीड टू हेल्प हर, और वो उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो गई। द नेक्स्ट डे कतरीना गॉट रेडी, अगले दिन कतरीना तैयार हो गई। शी वॉर अ सूट ऑफ आर्मर, उसने एक ज़रा बख्तर पहनी। एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर दैट दिस इज़ कॉल्ड द ज़रा बख्तर। ओके, दिस इज़ कॉल्ड द आर्मर। दिस इज़ अ स्पेशल स्टील और आयरन ड्रेस which is worn by the soldiers during their war. Okay, उसने ये ज़रा बख्तर पहनी with a helmet, एक हेलमेट के साथ, टू कवर हर फेस, अपने चेहरे को छुपाने के लिए। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट शी इज़ वेयरिंग अ हेलमेट सो दैट नोबडी कैन रिकॉग्नाइज हर दैट शी इज़ अ वुमन। ओके, मीन्स उसने अपने आप को एक आदमी का जो है वो एक वॉरियर का रूप दिया, भेस बदल लिया उसने। शी कैरिड अ बो, उसने एक तीर कमान पकड़ी, एंड सम एरोज, और थोड़े से तीर। अ क्लब ऑफ स्टील, एक लोहे का डंडा यानी असा, ये हमने यहाँ पे उसमें पढ़ा था अपने वर्ड्स टू नो में कि क्लब का क्या मतलब था, असा यानी कि लाठी, यानी कि लोहे की एक लाठी स्टील की। एंड अ लॉन्ग लांस, और एक लंबा सा नेज़ा। पर्स्ड ऑन हर लेफ्ट फोर आर्म वॉज अ फाल्कन, पर्स्ड यानी कि चिपका हुआ था या जुड़ा हुआ था, उसके बाएं बाजू के ऊपर एक फाल्कन, ये जो उकाब होता है। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर। शी माउंटेड अ टॉल ब्लैक हॉर्स, और उसने एक लंबा काले रंग का घोड़ा भी तैयार किया। माउंटेड यानी कि उसको घोड़े को भी जो उसकी सीट वगैरह उसके ऊपर रखकर तो उसको जो तैयार किया जाता है, इस तरह उसने उसको तैयार किया अपने घोड़े को। व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड, जब उसके दोस्त पहुंचे, शी सेट ऑफ फॉर द पैलेस लीडिंग देम, तो वो उनको लीड करते हुए यानी कि उनकी रहनुमाई करते हुए पैलेस यानी कि महल की तरफ रवाना हुई। सेट ऑफ का मतलब रवाना होना। ठीक है, अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द सिटी, अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द सिटी, शहर की दीवारों से थोड़े ही फासले पर। कतरीना टोल्ड हर फॉलोअर्स टू वेट, कतरीना ने अपने जो पीछे आने वाले थे उनको इंतज़ार करने को कहा। शी रोड बाय हर सेल्फ इन टू द सिटी, वो अकेली ही खुद शहर के अंदर गई। एंड वेंट टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, और महल के अजीम हॉल में यानी कि जो बड़ा सा उसका कमरा था उसमें चली गई। ऑल द पीपल थॉट शी वॉज सम ग्रेट वॉरियर, सब लोगों ने यही सोचा या यही वो समझे कि ये कोई बहुत अजीम जंगजू है। ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, बेशक, नो वन गेस्ट शी वॉज अ वुमन, किसी ने भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया। गेस्ट का मतलब अंदाज़ा लगाना, ठीक है, बूझना। नो वन गेस्ट शी वॉज अ वुमन, किसी को ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो एक औरत है।
औरत थी। कतरीना बॉड टू प्रिंस व्लादिमीर, कतरीना ने शहजादे व्लादिमीर के सामने झुककर उसे सलाम किया। ठीक है, हेयर यू कैन सी दैट शी इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंस। आई एम द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ ग्रीस, मैं यूनान के बादशाह का सफ़ीर हूँ। शी अनाउंस्ड, उसने ऐलान किया। आई हैव कम टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्राम यू, मैं आपसे खराज तहसीन वसूल करने आया हूँ। इफ़ यू रिफ्यूज़ टू पे, अगर आपने ये देने से इनकार किया, माई आर्मी ऑफ 40,000 मैन विल अटैक योर सिटी, तो मेरी 40,000 आदमियों की फ़ौज आपके शहर पर हमला कर देगी। यानी कि उसने अपने आप को एक मर्द जाहिर किया और उसने जाके वहाँ पे ऐलान किया कि मैं यूनान के बादशाह का सफ़ीर हूँ और मैं आपसे खराज तहसीन यानी कि अपने लिए गिफ्ट यानी कि लेने आया हूँ। तो अगर आप मुझे वो नहीं देंगे तो मैं अपने 40,000 आदमियों की फ़ौज के साथ आपके शहर पर हमला कर दूँगा। ओके। प्रिंस व्लादिमीर ट्रेम्बल्ड विद फियर, शहजादा व्लादिमीर खौफ से लरज़ गया। ट्रेम्बल्ड, लरज़ गया, विद फियर, खौफ से। गिव मी टाइम टू थिंक, मुझे सोचने का वक्त दो। एम्बेसडर, सफ़ीर, ही बेग्ड, उसने मन्नत समाजत की। टाइम इज़ प्रीशियस, वक्त बहुत कीमती है। रॉड द एम्बेसडर, सफ़ीर जो है वो धाड़ा, यानी गुस्से में वो ऊंची से बोला। आई वॉन्ट योर आंसर नाउ, मुझे अभी तुम्हारा जवाब चाहिए। पे द ट्रिब्यूट और वी विल अटैक, या तो खराज तहसीन पेश करो या फिर हम हमला कर देंगे। इफ़ यू कैन नॉट पे, अगर तुम नहीं दे सकते, देन गिव मी योर नीस ज़बावा टू बी माई वाइफ, तो फिर मुझे अपनी भांजी ज़बावा दे दो ताकि वो मेरी बीवी बन जाए। द प्रिंसेस नीस ज़बावा वॉज अ ब्यूटिफुल एंड क्लेवर गर्ल, शहजादे की भतीजी या भांजी जो भी है यहाँ पर, ज़बावा भतीजी थी। वॉज अ ब्यूटिफुल एंड क्लेवर गर्ल, एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी। द प्रिंस लव्ड हर डियरली, शहजादा उससे बहुत मोहब्बत करता था या बहुत उसका ख्याल रखता था। देयर वॉज नथिंग इन द वर्ल्ड ही वुड डू टू हार्म हर, दुनिया में वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे वो करता था जिससे उसे नुकसान हो। एट दिस टाइम ज़बावा वॉज सिटिंग इन द ग्रेट हॉल, उस वक्त ज़बावा भी उसी अजीम हॉल में, उसी बड़े कमरे में बैठी हुई थी। वॉचिंग एंड लिसनिंग टू ऑल दैट वॉज सेड, और वो सब वो देख और सुन रही थी जो सब कहा जा रहा था। द प्रिंस आस्क्ड हर, शहजादे ने उससे पूछा, बिलव्ड नीस, प्यारी भतीजी, ओनली यू कैन सेव अस, सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो। व्हाट आर वी टू डू, हम क्या कर सकते हैं। डियर अंकल, प्यारे चचा जान, रिप्लाइड ज़बावा, ज़बावा ने जवाब दिया। आई ओबे यू इन ऑल मैटर्स, मैं हमेशा आपकी हर मामले में आपकी वो करती हूँ। ओबे का मतलब मेरे जहन में नहीं आ रहा, यानी आपकी फर्माबरदारी करती हूँ। ठीक है, मैं हमेशा आपकी ताबियादारी करती हूँ। बट आई कैन नॉट मैरी अ वुमन, लेकिन मैं एक लड़की से शादी नहीं कर सकती। दिस एम्बेसडर इज़ नॉट अ मैन बट अ वुमन, ये सफ़ीर एक आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। सी हाउ द एम्बेसडर टॉक्स एंड वॉक्स, आप देखें कि किस तरह ये सफ़ीर बात कर रहा है और चल रहा है। लुक एट द रिंग मार्क्स ऑन हर डेलिकेट फिंगर्स, इसकी नाजुक उंगलियों पे आप अंगूठियों के निशान देखें। यू मे बी राइट, तुम सही हो शायद। एग्रीड द प्रिंस, शहजादा उसकी बात मान गया, शहजादा उसकी बात से मुत्तफिक हुआ। बट वट कैन वी डू टू फाइंड आउट इफ़ द एम्बेसडर इज़ अ मैन और अ वुमन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये सफ़ीर एक आदमी है या औरत। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, प्रिंस व्लादिमीर स्पोक टू द एम्बेसडर, प्रिंस व्लादिमीर जो शहजादा व्लादिमीर था उसने एम्बेसडर यानी सफ़ीर से बात की। डियर एम्बेसडर, अजीज़ सफ़ीर, सेड द प्रिंस, शहजादे ने कहा, माई नीस इज़ यूज टू people with my niece is used to people with great skills, मेरी भतीजी को अजीम महारतें रखने वाले लोगों की आदत है। ठीक है, यानी कि वो उन लोगों को पसंद करती है। आई कैन ओनली अलाउ हर टू मैरी यू, मैं सिर्फ इस सूरत में तुम्हें उससे शादी करने की इजाज़त दे सकता हूँ। इफ़ यू कैन शो अस यू आर स्किलफुल, अगर तुम मुझे ये दिखा सको कि तुम बहुत ज़्यादा माहिर हो या तुम्हें बहुत सारी महारतें आती हैं। कम, आओ, शो अस, हमें दिखाओ। इफ़ यू कैन प्ले द हार्प, के क्या तुम साज बजा सकते हो। अ हार्प वॉज ब्रॉड, एक साज लाया गया। एंड कतरीना बिगैन टू प्ले इट एंड सिंग, और कतरीना ने इसको बजाना शुरू कर दिया और गाना शुरू कर दिया। द नॉबल्स वर इंचेंटेड विद द म्यूज़िक, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन पर उसके म्यूज़िक यानी कि उसकी मौसीकी से सहर तारी हो गया। बट नो वन कुड टेल, लेकिन कोई भी ये ना बता सका, वेदर द एम्बेसडर वॉज अ मैन और अ वुमन, कि ये सफ़ीर एक आदमी था या एक औरत।
देन द प्रिंस आस्क्ड द एम्बेसडर टू प्ले अ गेम ऑफ चेस। फिर शहजादे ने सफ़ीर को शतरंज का एक खेल खेलने को कहा। द प्रिंस वॉज द बेस्ट प्लेयर इन द लैंड। शहजादा इस पूरी सरजमीन में शतरंज का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था। ही बिलीव्ड इफ़ द एम्बेसडर वॉज अ वुमन शी वुड लॉस। उसे यकीन था कि अगर ये सफ़ीर एक औरत थी तो वो लाजमन उससे हार जाएगी। मच टू द प्रिंसेस एस्टोनिशमेंट, शहजादे की हैरत की इंतहा न रही। एस्टोनिशमेंट का क्या मतलब होता है? हैरत। द एम्बेसडर वॉन द गेम, वो सफ़ीर जो है वो उस शतरंज का जो खेल था वो जीत गया। द प्रिंस टर्न टू ज़बावा, शहजादा ज़बावा की तरफ मुड़ा। दिस इज़ नो वुमेन ही विस्पर्ड, ये औरत नहीं है, उसने सरगोशी की। आई एम श्योर शी इज़, मुझे यकीन है कि ये औरत ही है, रिप्लाइड ज़बावा, ज़बावा ने जवाब दिया। द प्रिंस थॉट फॉर अ वाइल, शहजादे ने कुछ लम्हे के लिए सोचा, एक लम्हे के लिए सोचा। देन सेड टू द एम्बेसडर, और फिर सफ़ीर से कहा, लेट अस नाउ ट्राई सम आर्चरी, चलो आओ अब हम थोड़ी सी तीर कमानी करते हैं। द प्रिंस, द एम्बेसडर एंड द नोबल्स, शहजादा, सफ़ीर और तमाम मोअज़्ज़िज़ीन ऑल वेंट आउटसाइड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड, सब बाहर एक बड़े से सेहन में चले गए। कोर्टयार्ड का क्या मतलब होता है? सेहन। अ गोल्डन रिंग वॉज सेट अप एट वन एंड, एक वो उस जो सेहन था उसके एक सिरे पर एक तरफ जो है एक गोल्डन सुनहरी जो छल्ला था, रिंग यानी कि बड़ा सा छल्ला था, वो लगाया गया। एंड द प्रिंस प्लेस्ड अ स्टील नाइफ बिहाइंड इट, और शहजादे ने उसके पीछे एक जो स्टील की जो छुरी थी वो वहाँ पर लगा दी। फर्स्ट, सबसे पहले द प्रिंस शॉट 3 एरोज एट द टारगेट, शहजादे ने उस टारगेट पर 3 अपने तीर फेंके। द एरोज पास्ड थ्रू द रिंग, तीर उस रिंग में से, उस छल्ले में से गुजर गए। बट डिड नॉट हिट द नाइफ, लेकिन नाइफ यानी कि छुरी को ना छू सके। देन द एम्बेसडर शॉट एन एरो एट द रिंग, फिर उस सफ़ीर ने एक तीर जो है उस छल्ले की तरफ फेंका। द एरो हिस्ड लाइक अ स्नेक एज इट फ्लू, तीर एक सांप की तरह फुन्नाया। हिस्ट का मतलब यानी कि उसने एक सांप की जो आवाज़ होती है उसको हम हिस्ट कहते हैं, ठीक है। हिस्ट लाइक अ स्नेक एज इट फ्लू, जैसे ही ये तीर जो है वो निकला अपने तीर कमान से तो उसने सांप जैसी आवाज़ के साथ वो गुजरा वहाँ से। इट पास थ्रू द रिंग, ये छल्ले में से गुजर गया। एंड कट इट सेल्फ इंटू 2, और इसने अपने आप को 2 हिस्सों में कट कर लिया, यानी कि तीर जो था वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अगेंस्ट द एज ऑफ द नाइफ, छुरी के सिरे से लगने के बाद, यानी कि छुरी के सिरे से वो अपने आप को गुजारता हुआ 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, यानी कि इतना उसका परफेक्ट जो था वो निशाना था। द प्रिंस वॉज नाउ श्योर दैट द एम्बेसडर वॉज अ मैन, अब तो शहजादे को यकीन हो गया था कि ये सफ़ीर एक आदमी था। बट ज़बावा स्टिल डिड नॉट एग्री विद हिम, लेकिन ज़बावा अभी भी उससे मुत्तफिक नहीं थी। आई शैल नॉट मैरी अ वुमन, मैं एक औरत से शादी नहीं कर सकती या नहीं करूंगी। शी क्राइड, वो चिल्लाई। द एम्बेसडर मे शूट एरोज जस्ट लाइक अ मैन, ये सफ़ीर चाहे एक आदमी की तरह तीर कमानी कर सकता है। बट ही टॉक्स वॉक्स एंड सिट्स जस्ट लाइक अ वुमन, लेकिन वो बोलता, चलता और बैठता बिल्कुल एक औरत की तरह है। द प्रिंस बिकेम एंग्री, शहजादा नाराज़ हो गया। यू आर बीइंग सिली, तुम बेवकूफ़ बन रही हो। ही सैड, उसने कहा। आई ऑर्डर यू टू मैरी द एम्बेसडर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ सफ़ीर से शादी करने का। गो, जाओ, प्रिपेयर फॉर योर वेडिंग, अपनी शादी की तैयारी करो। ज़बावा रैन ऑफ इन टीयर्स, ज़बावा आंसुओं के साथ रोती हुई चली गई। द प्रिंस टोल्ड द एम्बेसडर, शहजादे ने सफ़ीर से कहा दैट हिज ब्राइड वुड सोन बी रेडी, कि उसकी दुल्हन जल्द ही तैयार हो जाएगी। बट कतरीना डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू दिस गेम, लेकिन कतरीना ने इस सारे खेल को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। शी सेड टू द प्रिंस, उसने शहजादे से कहा, बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले, लेट अस फाइट ईच अदर, आए हम दोनों मुकाबला करते हैं, यानी कि थोड़ी सी लड़ाई करते हैं, यानी मुकाबला करते हैं। लेट अस सी हु इज़ स्ट्रोंगर, हमें देखने दें कि कौन ज़्यादा मजबूत है। ट्रैम्बलिंग एट दिस सजेशन, इस मौक़िफ़ पर लरसते हुए, द प्रिंस सेड, शहजादे ने कहा, एम्बेसडर सफ़ीर, देयर इज़ नो वन हेयर हु इज़ योर मैच, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके। ओ डियर, ओ प्यारे, रिप्लाइड कतरीना, कतरीना ने जवाब दिया। इज़ देयर नो वन, क्या कोई भी नहीं है। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम स्पोर्ट, मैं तो कुछ खेल खेलना चाह रही थी। परहैप्स देयर इज़ अ ब्रेव वॉरियर इन योर डंजन्स हु कुड फाइट मी, बिलाशुबा या गालबन आपके, परहैप्स का मतलब है गालबन शायद,
देयर इज़ अ ब्रेव वॉरियर, एक अजीम एक बहादुर जंगजू है इन योर डंजन्स, आपकी कोठरी में, हु कुड फाइट मी, जो मेरा मुकाबला कर सकता है. यस यस देयर इज़, हाँ हाँ बिल्कुल है, सेड द प्रिंस स्माइलिंग एंड रिमेंबरिंग स्टावर गोर्डिनोविच. शहजादे ने मुस्कुराते हुए और स्टावर गोर्डिनोविच के बारे में याद करते हुए कहा. ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू ब्रिंग स्टावर फ्रॉम द डंजन्स. उसने फ़ौरन ही अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो काल कोठरी में से स्टावर को लेकर आएं. सून, जल्द ही स्टावर गोर्डिनोविच अराइव्ड. स्टावर गोर्डिनोविच आ गया. ही वॉज ऑर्डर्ड, उसे हुक्म दिया गया टू पुट ऑन अ सूट ऑफ आर्मर, कि वो एक ज़रा बख्तर पहन ले एंड माउंट अ हॉर्स, और एक घोड़ा तैयार कर ले. When Stour was ready, जब स्टावर तैयार हो गया, he and the ambassador galloped into a nearby field. वो और सफ़ीर घोड़ा दौड़ाते हुए एक करीबी खेत में चले गए या करीबी मैदान में चले गए. All the nobles went to watch the great fight. तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ये अजीम लड़ाई या ये अजीम मुकाबला देखने के लिए बाहर चले गए. द एम्बेसडर एंड स्टावर रोड टूवर्ड्स ईच अदर. वो सफ़ीर और स्टावर दोनों अपने घोड़े एक दूसरे के सामने लाए या एक दूसरे के मुकाबले में लाए. एंड देन लेफ्ट फ्रॉम हॉर्स टू हॉर्स, और फिर एक दूसरे के घोड़ों पर छलांगे लगाईं. दे थ्रू देयर स्टील क्लब्स इन द एयर. उन्होंने अपने लोहे के जो असे थे उनको या लाठियाँ थी उनको हवा में उछाला. एंड देन रोड स्ट्रेट टूवर्ड्स द प्रिंस, और फिर सीधा घोड़ा दौड़ाते हुए शहजादे की तरफ चले गए. द टेरिबल एम्बेसडर ऑफ ग्रीस टुक ऑफ हर हेलमेट. यूनान के टेरिबल यानी कि इंतहाई खौफनाक यानी कि लर्जा तारी करने वाले सफ़ीर ने अपना हेलमेट उतारा. एंड थ्रू इट एट द फीट ऑफ द प्रिंस, और इसे शहजादे के कदमों में फेंक दिया. कतरीना's beautiful long hair fell down over her shoulders. कतरीना के खूबसूरत लंबे बाल उसके कंधों पर खुल गए. द नोबल्स gasped इन सरप्राइज. तमाम मुअज़्ज़िज़ीन हैरत से गुम हो गए, यानी कि gasped का मतलब कि उनका जो दम था वो गुम हो गया, यानी कि दम साध लिया उन्होंने. ग्रेट प्रिंस, अजीम शहजादे, लाफ्ड कतरीना हंसी. आई हैव रेस्क्यूड माई हस्बैंड फ्रॉम योर डंजन्स. मैंने अपने शोहर को आपकी काल कोठरी में से आज़ाद करवा लिया है. यू मस्ट एग्री, आप इस बात पर लाजमी मुत्तफिक होंगे. ही वॉज राइट टू बूस्ट ऑफ माई स्किल्स, कि वो मेरी महारतों के बारे में बिल्कुल सही शेखी बघार रहा था. नाउ फेयरवेल, अब अलविदा. फेयरवेल का मतलब अलविदा. एंड लाफिंग टुगेदर, और इकट्ठे हंसते हुए कतरीना एंड स्टावर गोर्डिनोविच रोड अवे. कतरीना और स्टावर गोर्डिनोविच घोड़ा दूर ले गए. So teachers and parents, this was the story of the ambassador's disguise, and as you have read that how skillful that woman was and how she rescued her husband with her wonderful skills and clever plan. So this was the reading and translation. I will request you to teach your students in the same way as I have done the reading. Show them this video, watch this video yourself again and again, and try to read like this, and try to understand and comprehend and translate all the English lessons word to word in our own national language, that is Urdu. Only then we will be able to explain these things to our children. Okay teachers, make yourself skillful. जिस तरह आपने इस लेसन में पढ़ा है ना कि उसकी वो जो औरत थी कतरीना, वो कितनी स्किलफुल थी, इसी तरह आप टीचर्स भी अपने आप को स्किलफुल बनाएं, इतना स्किलफुल कि कोई भी आपको हरा ना सके. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस lecture, this training lecture with all your fellow teachers, with all your fellow parents, so that they also know that how they can teach their students or their children at homes very easily and with correct method. And remember me in your prayers, and in the next video we will meet again inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz.